اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ملت اسلامیہ آئے اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں ہدیہ درود نشان کریں اور جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ملت اسلامیہ خدا بندوں کے دوست ہیں۔ انسان کو تمام مخلوقات کے اندر اشرف اور سبوں سے اعلیٰ بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسان کے لیے اس کی حیثیت کے اعتبار سے، اس کے مرتبے اور مقام کے لحاظ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے لیے ان چیزوں کو پسند فرمایا ہے جو اس کے لیے مناسب ہے، اور غیر مناسب چیزوں کو اللہ رب العزت نے خود بھی انسان کے لیے پسند نہیں فرمایا ہے۔ جس مرتبے پر انسان کو اللہ رب العزت نے فائز فرمایا، اس کے مرتبے کے اعتبار سے اس کے لیے پسندیدہ چیزوں کا تعین بھی فرمایا، اور قرآن کے اندر بے شمار جگہوں پر، قرآن کی بے شمار آیتوں کے اندر اس چیز کا بیان بھی موجود ہے کہ انسان جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف ہے، اس کے لیے کس چیز کا استعمال زیادہ بہتر ہے اور کس چیز کا استعمال غیر مناسب۔ انسان کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے اور انسان کے لیے جن چیزوں کا استعمال مناسب قرار دیا گیا ہے، اس کی فہرست بڑی لمبی ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن ان چیزوں میں جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، جو انسان کے لیے مناسب ہے، انسان کے لیے انہی چیزوں کا استعمال درست ہے۔ پانی کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور شراب بھی قدرتی طور پر پیدا کی گئی چیز ہے۔ دونوں چیزیں دنیا کے اندر پیدا کی گئی ہے، دونوں کا خالق پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، لیکن پانی کا استعمال انسان کے لیے مناسب ہے شرعی اعتبار سے، اور شراب کا استعمال انسان کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے غیر مناسب۔ گوشت تک آپ کھاتے ہیں، حلال جانور کا گوشت بکرا ہے یا مرغا ہے یا اور دیگر حلال جانور ہے، ان کا گوشت آپ کے لیے حلال ہے۔
बकरा है, मुर्गा है या और दीगर हलाल जानवर हैं, इनका भी पैदा करने वाला अल्लाह ही है, लेकिन इनका इस्तेमाल आपके लिए मुनासिब है। और कुत्ता, खंजीर या दीगर जो हराम जानवर हैं, इनका भी पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे लिए, इंसानों के लिए और बिलखुसूस ईमान वालों के लिए, जो मुसलमान हैं उनके लिए कतई गैर मुनासिब। इंसान के लिए सारी चीज़ें पैदा की गई हैं, सारी चीज़ों का खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन इंसान के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल मुनासिब है शरई एतबार से और दुनियावी एतबार से, और किस चीज़ का इस्तेमाल उसके लिए गैर मुनासिब है, कुरान की बेशुमार आयतों में इसकी तफसील मौजूद है। सरे दस्त जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, रब ताला कुरान की उस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। ए लोगों, जमीन में जो चीजें पैदा की गई हैं, जमीन के अंदर जो चीजें तख्लीक के मराहिल को तय करने के बाद आलम वजूद में आ चुकी हैं, उन चीजों में से खाओ, लेकिन उन्हीं चीजों को खाओ और उन्हीं चीज को अपने इस्तेमाल में लाओ जो हलाल है, तय्यब यानी पाकीज़ा और सुथरी चीजें। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, शरीयत से रूगर्दानी करके खिलाफे शरा उमूर को अंजाम ना दो। शैतान के नक्शे कदम पर चल करके सुथरी चीज़ें, पाकीज़ा चीज़ें जिनका इस्तेमाल आपके लिए जायज़ व दुरुस्त है, उनसे एराज करके, उससे इज्तनाबो परहेज करके, हलाल जानवर या हलाल चीज़ों को छोड़ करके हराम और नापसंदीदा चीज़ों को शैतान की इत्तिबा और फरमाबरदारी में अपने लिए लाज़िम और ज़रूरी न समझो, बल्कि उनसे दूर रहो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान की इत्तिबा तुम्हारे लिए ज़हर कातिल है, तुम्हारे लिए हिलाकत और बर्बादी का एक बहुत ही बड़ा जरिया और बहुत ही बड़ा सबब है, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और दुश्मन कभी भी आपकी भलाई, आपकी खैरखाही का जो है फासले आसे रखता है। कुरान पाक की आयत करीमा है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ तौर पर बयान फरमाया है कि इंसान के लिए दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें पैदा की गई हैं, सारी चीज़ें पैदा की हुई हैं उस एक हस्ती की, उस एक ज़ात की पैदा की हुई चीज़ें हैं जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जिसके सामने हम सर्वसुजूद हुआ करते हैं, जिसकी बारगाह में हम अपनी पेशानियां झुकाया करते हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों में से हमारे लिए वो चीज़ें काबिले इस्तेमाल हैं जो हमारे लिए मुनासिब हैं, उन मुनासिब चीज़ों को हम और आप इस्तेमाल करें, और गैर मुनासिब चीज़ें जिनको शरीयत ने, अल्लाह और रसूल ने गैर मुनासिब करार दिया है, भूल कर भी उनके करीब न। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी हैं, और उनके सामने कुरान की आयत करीमा जब पढ़ी गई, कुरान की आयत करीमा की तिलावत की गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप भी मौजूद थे, आपके सामने कुरान की आयत तिलावत की गई, आपने कुरान की इस आयत को समाअत किया, और समाअत करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी मुस्तजाबत दावात। आप फरमाते हैं, और हदीस के रावी फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास के सामने कुरान की इस आयत की तिलावत की गई, कुरान की इस आयत को पढ़ा गया, आपने कुरान की इस आयत को सुनने का शरफ हासिल किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी मुस्तजाबत दावात। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ फरमा दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। मुस्तजाबुद दावात कहा जाता है ऐसे इंसान को कि जिसकी कोई भी दुआ दुनिया के अंदर रद्द ना की जाती हो,
बल्कि उसकी मांगी हुई हर हर दुआ शर्फ कबूलियत से सरफराज होती हो, अल्लाह उसकी हर हर दुआ को सुनता है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान की इस आयत को सुनने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे, मेरी हर हर दुआ को शर्फ़े कबूलियत से सरफराज फरमाया करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस सहाबी का ये नजरिया देखा, आपकी इस बात को समाज की और इरशाद फरमाया, या साद अतिब मदअमका तकुन मुस्तजाब दावात। आपने इरशाद फरमाया, ए साद बिन अबी वक्कास, अगर तुम्हें चाहते हो कि तुम मुस्तजाबुद दावात बना दिए जाओ और तुम्हारी सारी दुआएं शर्फ़े कबूलियत से सरफराज की जाए, तुम्हारी कोई भी दुआ रद्द ना की जाए, हर हर दुआ को कबूलियत के मकाम पर फाइज करार दिया जाए और कबूलियत का शरफ उसे हासिल हो, तो तुम्हारे लिए लाज़िम ज़रूरी है कि अपनी खाने वाली और पीने वाली चीज़ों को पाकीज़ा और सुथरी बनाओ। तुम जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में खाने के लिए इस्तेमाल करो या पीने के लिए इस्तेमाल करो, सारी चीज़ों को पहले चेक किया करो कि शरई एतबार से वो चीज़ें हलाल है, पाक और तय्यब है, सुथरी है, या पाकीज़ा और हलाल चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं है। अगर तुमने इन चीज़ों का पासो लिहाज किया है और अपनी ज़िंदगी में अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल अपने लिए किया है जो शरई एतबार से पाकीज़ा है, हलाल और तय्यब है, तो यकीनन तुम मुस्तजाबुद दावात बना दिए जाओगे और तुम्हारी हर हर दुआ बारगाह इलाही में कबूलियत के दर्जे पर फाइज फरमा दी जाएगी। लेकिन अगर तुमने अपनी दुआओं को ये चाहा कि शर्फ़े कबूलियत से तुम्हारी दुआएं सरफराज हो, लेकिन तुम्हारे जिस्म के अंदर जो लुक़मा जा रहा है, तुम जो पानी पी रहे हो, खाने और पीने की चीज़ें जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उनमें अगर ज़र्रा बराबर भी हराम चीज़ों की आमेज़िश है या हराम चीज़ों की मिलावट है, तो तुम्हारी दुआ कभी भी इस बारगाह इलाही में कबूलियत के दर्जे पर फाइज नहीं हो सकती है। इन्नल अब्दा लयक़ज़िफुर रजुला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के आगे इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह का वो बंदा कि जो अपने शिकम के अंदर हलाल रिज्क के बजाय हराम रिज्क को डालता है और हराम चीज़ें अपने अंदर इस्तेमाल करता है खाने की चीज़ों में या पीने की चीज़ों में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लम युतक़ब्बल मिन्हु अमलुन अर्बईना यौमन। ऐसा शख्स जो दुनिया के अंदर खाने की चीज़ों में या पीने की चीज़ों में हराम चीज़ों की आमेज़िश करता हो, हराम चीज़ों की मिलावट करता हो या हराम चीज़ें खाने और पीने में इस्तेमाल करता हो, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा शख्स मस्जिदों में अगर पूरी रात इबादत करता हो, अपनी पेशानी को सजदे में रखता हो, रात दिन अल्लाह की इबादत करता हो, रात दिन तकवा और परहेजगारी के साथ उसका ताल्लुक रहा करता हो, दिन में रोजे रखा करता हो, उठते बैठते नेकियां किया करता हो, लम युतक़ब्बल मिन्हु अमलुन अर्बईना यौमन। लेकिन ऐसा शख्स जिसने हलाल लुक़मा इस्तेमाल नहीं किया है, हराम चीज़ें इस्तेमाल की है खाने और पीने की चीज़ों में, 40 दिनों तक उसकी कोई भी दुआ को काबिल कबूल नहीं हो सकती। 40 दिनों तक अल्लाह की बारगाह में उसकी कोई भी दुआ कबूलियत के मर्तबे पर फाइज नहीं हो सकती। यह हदीस पाक है, उठा करके देखना। हदीस की एक बड़ी किताब है मौजमुल औसत, जो इमाम तबरानी की है और बड़ी मशहूर किताब उनकी है, और तकरीबन हदीस नंबर 4594 हदीस है, और ये पूरी तफसील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाई है। और आखिर में एक चीज़ और जिक्र फरमाया है कि ऐसा बंदा कि जो जिसके जिस्म का गोश्त सूदखोरी और हराम खोरी से उगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फन्नारो औला बिही, ऐसा इंसान जो अपने जिस्म की परवरिश करता हो, अपनी औलाद या अपने अहले खाना की परवरिश करता हो सूद
के माल से, सूद के माल से या हराम माल से उनकी परवरिश करता हो, चाहे खुद वो खाता हो या अपने अहलो अयाल को खिलाता हो, तो जिन लोगों की परवरिश या जिनके जिस्म का जो गोश्त है वो हराम खोरी, हराम माल से या सूद के माल से उगता हो, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फन्नारो औला बिही, ऐसे अजसाम के लिए और ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतर जगह मरने के बाद जहन्नम। यह हदीस के अल्फाज हैं और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में और बड़े साफ अल्फाज में बयान फरमाया है कि मुसलमान दुनिया के अंदर तमाम इंसान बिलखुसूस जिनका ताल्लुक ईमान से है, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनके लिए लाजिम व ज़रूरी है कि अपने खाने की चीज़ों को और अपने पीने की चीज़ों को हलाल व तय्यब करें। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबा, ऐ लोगो ज़मीन के अंदर उन्हीं चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाओ जो तुम्हारे लिए हलाल है, तय्यब है, पाकीज़ा और सुथरी है। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर चल करके हराम चीज़ों को अपने इस्तेमाल में ना लाओ। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान के इत्तिबा में अगर तुमने हराम चीज़ों का इस्तेमाल अपने लिए जायज़ करार दिया है शरीयत से रूबदारी करके, तो यकीनन शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तुम उसकी इत्तिबा में, उसकी फरमा बरदारी में कभी भी अपने लिए भलाई और अपने लिए खैर नहीं पा सकते। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तलबो कसबिल हलाली फरीज़तुम मिम्मा फरीज़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वैसे तो तमाम इंसानों पर और बिलखुसूस मोमिनों पर, मुसलमानों पर जो अहले ईमान हैं, अहले इस्लाम है, उन पर ये लाजिम व ज़रूरी है कि फ़राइज़ के बाद उनके लिए सबसे अहम फ़र्ज़ ये है कि वो रिज़्क़े हलाल रिज़्क़े हलाल यानी पाकीज़ा रोज़ी की तलाश की कोशिश करें और रिज़्क़े हलाल कमा करके खुद अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए उनका इस्तेमाल करें। ये हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है कि 5 वक्ता जो नमाजें हैं, इन नमाज़ों को इनके औकात पर अदा करो जिस तरह इनके अदा करने का हक़ है, और जब नमाजें उनके वक्त पर मुकम्मल तौर से अदा कर लो तो हाथ पर हाथ धर करके जो है मस्जिदों में या घरों में मत बैठो कि रिस्क नाजिल होगा और हम उसका इस्तेमाल खुद करेंगे, अपनी नस्लों को जो है उसका इस्तेमाल कराएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के बाद तुम पर एक अहम फ़र्ज़ ये भी है कि तुम रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश करो और हलाल रिज़्क़ कमा करके उसका इस्तेमाल खुद भी करो, और जिनकी कफ़ालत, जिनकी जिम्मेदारी तुम्हारे सरों पर आयद है, उनके लिए भी रिज़्क़े हलाल कमा करके उनके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों को हलाल कमाई से लाने की कोशिश करो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और जितने लोग उसकी जिम्मेदारी के तहत आते हैं उनके ताल्लुक से उसके बारे में सवाल किया जाए। घर का कोई मेन आदमी है जिसके हिसाब से घर चलता है, घर का सारा सिस्टम और घर का सारा निज़ाम चलता है, और उसकी लाई हुई चीज़ें घर के दीगर अफराद इस्तेमाल करते हैं, तो घर का जो नाजिम है, घर का जो हेड है और घर का जो जिम्मेदार है, उसके लिए लाजिम व ज़रूरी है कि अपने लिए या अपने घर वालों के लिए जिन चीज़ों को खरीद रहा है, उनके खाने के लिए, उनके पीने, उनके पहनने के लिए और उनकी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो ला रहा है किसी भी तरीक़े से, उसके लिए लाजिम व ज़रूरी है कि वो लाए तो हलाल माल से उनको खरीद करके लाए और हलाल रोज़ी कमा करके उसका बंदोबस्त करें।
اور اگر اس نے اپنے اس فرض کی ادائیگی میں دنیا کے اندر کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے اور کسی طرح کی جو ہے کاہلی کا وہ شکار ہوا ہے، تو یقیناً اس کا بھی اسے مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا کہ جس کی ذمہ داری تمہارے سر پر عائد کی گئی تھی ان کی پرورش تم نے حلال مال سے کی ہے یا حرام مال سے کی ہے۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ من بعد الفریضہ، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد ایک مسلمان پر سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ رزق حلال کما کر کے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سننے میں جو کچھ کمی بیشی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔